Hi, hello everyone. Inspiring Insights welcomes you to this new episode under our series Knowledge and Awareness. So, the aim of this series has been to help our viewers facilitate, empower them, especially parents, with knowledge and awareness. Today is 2nd April 2024, and it is World Autism Awareness Day. This day is about acceptance and inclusion of people, especially children, facing with this challenge of autism. According to a 2021 study published by the Indian Journal of Pediatrics, the estimated prevalence of autism in India is around 1 in every 68 children. So early diagnosis and intervention is still in a very, very nascent stage in a country like India. A lot of parents do not have awareness about what really is autism and how an early awareness and early intervention can help them as well as their children. So a very pertinent topic for the day, very pertinent topic for current times. So that's why today our effort is to bring little more awareness about this topic. And for this, we have a very, very special guest in the house, Dr. Sween Saini. So Dr. Sween Saini is a person who dons many hats. So she is a clinical psychologist. She is a psychotherapist. She is a personal counselor, a parenting coach, a career strategist, and a celebrated author. And not to miss out, she has been a very, very active participant with a school for special children in a city called Hoshiarpur. Her career spans for more than 3 decades. So for more than 35 years, she has spent in serving the society, through her coachings, through her counselings, through her trainings, through her teachings, and her active participation in the school for special children. So she has come across so many lives. She's touched so many lives in her career of over 3 decades. And that's why today we have her in the house to share more details about what really is autism, how can parents with children who are facing these challenges can help facilitate them to have a normal life, to lead a normal life, and how they can make sure that they can be successful in their lives. So thank you so very much, Dr. Sween Saini, for taking out time and being with us, talking about such a pertinent issue today. So all over to you, Dr. Saini. Hi, Neha. Good morning, everyone. Thank you so much, Inspiring Insights, for giving me this platform to speak about that topic, which is very close to my heart, and especially those people who are very close to my hearts, if I say rightly. Because since last, as you mentioned, since last so many years, we are serving special people in our different capacities and roles. So I have gone through life of those kids, their parents, their educators, their caregivers, and some other supporting staff also. So I have seen all the struggles, hardships faced by each and everyone around them. My activism is not about ending autism, actually. It is about ending cruelty. It is about ending stigma with a focus on the cruelty of bullying and judging them and their parents. So that's how I owe a highly gratitude to you for giving me this opportunity to share my experience, share my part of wisdom towards this special trait in some kids. Thank you. Thank you, ma'am. And very rightly said, the effort is not to end autism. The effort is to bring more awareness and to do away with that stigma that comes with this special situation. And that is what our effort in creating this video and talking to parents about it is. So let me begin by asking you, ma'am, कि होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली ऑटिज्म, या जो हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, आई बिलीव देयर इज अ स्पेक्ट्रम टू इट. सो अगर इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन व्हाट रियली इज दिस सिचुएशन अबाउट. Yeah, very apt question in the beginning.
I would start with a very simple statement. I am different, I am not less. And here, being a author, I would like to share a few lines written by me about autism, if you allow me. Please go Yeah. ahead. We would love to hear it. Yeah, so please try to listen to these lines from a heart of an autistic child. माँ कहती है मैं सब जैसा हूं, पर सब कहते हैं मैं सबसे अलग हूं। क्यों? क्योंकि मेरा दिन बाकी सबसे अलग है, सबके जितना आसान नहीं। मैं भागता हूं शोर से, पर पूछता हूं क्या तुम खुश हो इस शोर में? ये सच है कि मैं नजरें मिला नहीं पाता सबसे, लेकिन क्या तुम सब भी सिर उठा के बात कर सकते हो? हाँ, मैं चिल्लाता हूं, कह नहीं पाता, घुट जाता हूं अंदर ही, पर क्या तुम सब खास अच्छे लोगों में घुटे हुए लोग नहीं हैं? माना मुझे कुछ चीजें धीरे समझ आती हैं। हाँ, मानता हूं कुछ चीजें मुझे धीरे समझ आती हैं, पर तेजी से सीख के क्या तुम सब महारथी हो गए हो? मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, लेकिन ईश्वर का बनाया हुआ वो मन तो सबका एक जैसा है, पर तुम्हारी नजर वहां तक जाती क्यों नहीं? मुझ जैसा प्यार तुम सबके साथ नहीं, इतनी जजमेंट्स के बाद भी सबको गले लगाना तुम्हारे बस की तो बात नहीं। ऑटिस्टिक नहीं, आर्टिस्टिक हूं मैं। ऑटिस्टिक नहीं, आर्टिस्टिक हूं मैं अकेला नहीं, मुझ जैसे आर्टिस्ट बहुत हैं दुनिया में, और मैं वादा करता हूं तुमसे कि मिलके रंग डालेंगे ये सारी दुनिया हम। तो अपनी नजर हम पे बनाए रखना। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस हैं। एंड ऑटिस्टिक नहीं, आर्टिस्टिक हूं मैं। अमेजिंग, इट रियली टच्ड एग्जैक्ट। आवर हार्ट्स। सो डेफिनेटली, सो तो ट्रू। yes, Neha, because if we talk about what is ASD or autistic spectrum disorder, everybody can read through social media, YouTube, and Google. But we need to understand the pulse between the lines. कि वो जो lines उन्हें define करती हैं, it is a presentation of neurodivergence, it is a developmental disability, it includes differences or challenges in social communication skills, fine and gross motor skills, speech, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। हम बहुत कुछ समझते हैं, कहते हैं, जानते हैं, लेकिन हम क्या उनको इतना करीब से महसूस कर पाते हैं? तो महसूस करना बहुत जरूरी है कि जो पावर हमारे पास है और उनके पास नहीं है, उसके लिए हमें उनके साथ किस तरह से डील करना चाहिए। बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड में ऑटिस्टिक ट्रेट्स अपीयर होते हैं, और अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑटिस्टिक पर्सन्स की बात करें, they are different mix of characteristic strengths and support needs. I would like to clarify that autism is not a disease to be cured. It is a behavioral, educational, and family therapy system actually, which may help with building skills and overcoming related challenges. So जब हम ASD की बात करते हैं, this is an umbrella term which includes so many scales, so many levels, starting from mild, moderate, severe, and highly severe, और जिसको हम बोलते हैं profoundly severe. So इसकी वजह से इसे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला गया है कि अगर कोई बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं तो उसे हम पुराने डायग्नोसिस के हिसाब से नाम देते थे एस्पर्जस सिंड्रोम। और दिस इज दैट कैटेगरी जहां बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं and they are able to handle their daily life like other normal kids. They may be really focused on some topics जो उन्हें interesting लगते हैं, sorry, and discuss them non-stop. But they have some hardships in social interactions. So अगर हम moderate की बात करें, second level की, तो वो एक कहलाता है pervasive development disorder, जिसमें हम लोग इतना सिवियर नहीं है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, पर इतना इजी भी नहीं है जिसे हम माइल्ड कह सकें।
सो कुछ कुछ मॉडरेट लेवल रहता है, और सीवियर में तो हमें लगता ही है कि बच्चे को एक स्पेशल एजुकेशन सिस्टम में ही रहना पड़ेगा। उसके ऊपर कुछ मेहनत करके उन्हें हम एक नॉर्मल लीग में शामिल कर सकते हैं, लेकिन सीवियर के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं जो हम आगे डिस्कशन में शेयर करेंगे। एंड चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, इट इज द मोस्ट सीवियर पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम. So it describes children who develop normally and then quickly lose many social, language, and mental skills, usually between age 2 to 4. So इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों में सीजर डिसऑर्डर भी आने लगता है if they are affected by that highly severe spectrum. Let's see. सो थैंक यू सो मच मैम वो क्लैरिटी देने के लिए कि व्हाट रियली स्पेक्ट्रम से हमें क्या समझ में आता है कि कहाँ पे केस माइल्ड है, कहाँ सिवियर है, क्या सिवियरिटी लेवल है उस केस का। सो थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दैट फॉर अस। तो मैम मुझे ये बताइए कि फॉर पेरेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट पेरेंट्स ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, what are the red flags that they should watch out for? By what age ये red flags ज्यादातर visible होने लगते हैं, and parents should be mindful जैसे ही वो red flags दिखे they should reach out to an expert. So what are those red flags and by what age usually do they start appearing? Yeah. वेरी ग्रेट क्वेश्चन, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि कुछ सिम्टम्स होने पर ही ऑटिस्टिक हो बच्चा या कोई भी पर्सन, लेकिन कोई भी इशू चाहे वो मार्जिनली है या कम ही क्यों ना हो, सही असेसमेंट, गाइडेंस और ट्रेनिंग से ज्यादातर बच्चे जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट शो करने लगते हैं, है ना। सो ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है नेहा कि जितनी कम उम्र में रिमीडियल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाए उतना ज्यादा बेहतर होने के चांसेस हो जाते हैं, उनकी लाइफ को हम और इजी बना सकते हैं। सो जैसे आपने रेड फ्लैग्स की बात की, सो स्पीच डिले होना, या फिर शब्द होने के बाद भी वोकैबुलरी की नॉलेज है पर प्रॉपरली बात नहीं कर पा रहा है बच्चा, या सिर्फ नीड बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहा है, तब वहां पेरेंट्स का अलर्ट होना जरूरी है। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को मांगने के लिए वो बच्चा इशारा करता है, या फिर दूसरे लोगों के हाथ से खींचता है, वो बोल के कह नहीं पाता। अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाना, या फिर अकेला ही खेलना ज्यादा पसंद करना, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि हम बच्चों को नाम से बार बार आवाज लगा रहे हैं, लेकिन बच्चा पलट के नहीं देख रहा, वो जिस काम में मस्त है वो मस्त है, उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि कोई उसे बुला रहा है। दैट इज ऑल्सो ए रेड फ्लैग। प्रॉपर आई कांटेक्ट ना करना, ज्यादा जिद करना या हाईली एग्रेशन जो है वो भी एक सिम्टम हो सकता है। जब हम बॉडी मूवमेंट्स की बात करते हैं तो इन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। दे कांट सिट स्टिल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम तो क्या कहें, नॉट इवन फॉर फ्यू मोमेंट्स, फ्यू मिनट्स। सो एक्साइटेड होने के ऊपर हैंड शेक करना, जंपिंग करना, स्पिनिंग करना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनकी बॉडी में चलती रहती है, स्टिलनेस नहीं आती है। दैट इज ऑल्सो ए वेरी मेजर साइन ऑफ ऑटिज्म। जब भी हम उन्हें कोई टॉयज, फॉर एग्जाम्पल कार्स देते हैं, तो वो उन्हें अलाइन करने लगते हैं, लाइन में लगाने लगते हैं, खेलते नहीं है। दे आर नॉट प्लेइंग विद देम, दे आर इधर अरेंजिंग और जस्ट रोटेटिंग द व्हील्स, पहियों को घुमाते रहना जिसको हम बोलते हैं। हर खाने पीने की चीज को खाने से पहले स्मेल करना। हमें लगता है कि ये बच्चे की पिक्यूलियर आदत तो है, बट ठीक है, स्मेल करके खाता है। दैट इज ऑल्सो एन इनिशियल सिग्नल ऑफ ऑटिज्म। अपने टॉयज को, चीजों को, बुक्स को, किसी भी चीज को लिक करना, मुंह में डालना, च्यू करते रहना, हर एक किसी भी चीज को उठाते ही च्यू करने की जो इंटेंसिटी है वो इन बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। जब बच्चे ये चलना शुरू करते हैं नेहा, तो इनमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेबल होता है टो वॉकिंग, जिसको हम बोलते हैं पंजों के बल पे चलना। और आपको पता है, आप विजुअलाइज करके देखो, हमारे आसपास फैमिलीज में अगर ऐसा कोई बच्चा करता है तो हम उसे फन की तरह लेते हैं। वी जस्ट टेक इट एज एन शरारतें कि ये बच्चा देखो, या तो उसका स्किल है कि वो टोज पे चल लेता है, या ये बड़ा शरारती। सो वी कांट कनेक्ट इट विद सम एनी डिसेबिलिटी, है ना। एक टेंडेंसी जो इन बच्चों में बहुत ज्यादा मिलती है वो है कि
कोई भी इधर से उधर से सुनी हुई बात को कॉन्टिन्यूसली रिपीट कर, बार बार एक सेंटेंस को, एक स्टेटमेंट को रिपीट करना, अपनी एज के बच्चों से कम मैच्योर लगना, जिसमें हम चाइल्डिश एटीट्यूड कहते हैं, इमेच्योरिटी और बचपना वो ज्यादा दिखाई देता है ऐसे बच्चों में। इसके अलावा और बहुत सारे सिग्नल्स, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे सोशल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि आई कांटेक्ट ना होना, नेम को अगर वो 9 मंथ्स तक भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर अगर एज क्राइटेरिया की बात करें, उनके फेशियल एक्सप्रेशन ब्लैंक हैं या फ्लैट हैं टिल 9 मंथ्स। आम बच्चे जो 1 साल के अंदर अंदर टॉयज के साथ खेलते हैं, उनका उन टॉयज में इंटरेस्टिंग ना होना बिल्कुल भी। 12 मंथ्स तक छोटे छोटे जेस्चर जैसे हाय, हेलो, गुड बाय वो ना समझ पाना, है ना। तो 15 मंथ्स तक जो मैंने ऊपर रेड फ्लैग्स पहले बताया आपको, अगर 15 मंथ्स तक वो वाले सारे दिखते हैं लगातार 1.5 साल तक, तो डेफिनेटली दिस इज ए कंप्लीट साइन ऑफ ऑटिज्म, है ना। और अगर हम देखते हैं कि बच्चा 60 मंथ्स की एज तक वो सिंगिंग, डांसिंग, प्ले एक्टिंग, किसी भी एक्टिविटी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आम बच्चों की तरह, वो भी एक बहुत बेहतरीन सिग्नल है जज करने के लिए। बिहेवियर में अगर हम बात करें तो पहले भी हम बात कर चुके हैं, टॉयज के साथ खेलना नहीं, एक रेपिटेटिव बिहेवियर शो करना उनके साथ। और अगर हम एक्टिविटी की बात करते हैं, हैंड फ्लैपिंग हो गया, बॉडी को रॉकिंग मूवमेंट में रखना या फिर स्पिन करना, इवन हेड बैंगिंग, हेड बैंगिंग भी इन बच्चों में बहुत ज्यादा पिक्यूलियर तरीके से पाई जाती है। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, रूटीन्स, हाइपर स्टिमुलेशन, और कुछ कुछ टेक्सचर, कुछ कुछ टेस्ट, कुछ कुछ साउंड्स, कुछ स्मेल्स के साथ इनकी जो अनयूजुअल सेंसिटिविटी कनेक्टेड होती है, सो इसको हम सेंसरी हाइपर स्टिमुलेशन बोलते हैं। तो ये बहुत ऐसे कॉमन साइंस हैं नेहा जो हमें दिखते हैं बच्चों में, लेकिन पेरेंट्स, केयर गिवर्स, फैमिली की तरफ से उनको बच्चा समझ के या शरारत समझ के या एक उसका हैबिट समझ के, आदत समझ के इग्नोर कर दिया जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मैम, बिकॉज अब जब आप बता रहे हैं तो वी कैन रिलेट कि हम कितने बच्चों को ऐसे बिहेवियर्स करते देखते हैं, बट कई बार हम उन्हें उनका बचपना, उनकी पिक्यूलियर हैबिट्स में शायद उस पे उतना तवज्जो नहीं देते हैं जो शायद देना चाहिए। तो आई एम यस, श्योर कि हमारे जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे दे विल एटलीस्ट कम टू नो कि किन बिहेवियर्स को, और स्पेशली जो कॉन्स्टेंटली दिख रहे हैं, उनको कितना हमें एक्सटेंड तक इग्नोर करना चाहिए और कब हमें उस पे वाकई तवज्जो देना चाहिए। यस। तो मैम, इसका अर्लीस्ट डायग्नोसिस, अगर हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो अर्लीस्ट डायग्नोसिस अराउंड व्हाट एज तक होता है? या जैसे मैंने पहले बताया नेहा कि 2 to 4 की एज में हमें ये काफी सारे सिम्टम्स विद इन रेंज ऑफ 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 15 मंथ्स, 16 मंथ्स ये दिखने लग जाते हैं। सो 2 to 4 की एज में सब कुछ क्लियर होने लग जाता है। सो लेटर देन दैट तो हम ये कहते हैं कि इट्स ए लेट डायग्नोसिस। सो एटलीस्ट 4.5 ईयर की एज पे हम एक अच्छे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या चाइल्ड असेसमेंट जो करते हैं स्पेशल नीड्स के बच्चों की, उनके पास से हम ये असेसमेंट करवा सकते हैं आगे, अगर हमें इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन अपने बच्चे में दिखाई देता है। राइट, थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट इनपुट। अब आप मुझे बताइए मैम कि वंस डायग्नोस्ड, ठीक है, इफ देयर इज अ डायग्नोसिस व्हिच कम्स कि ओके द चाइल्ड लाइज इन द स्पेक्ट्रम, तो इस डायग्नोसिस के बाद में हाउ कैन पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स सपोर्ट देयर चिल्ड्रन, हाउ एम्पैथेटिकली दे कैन सपोर्ट चिल्ड्रन विद ASD? See, Neha, we all completely understand here that supporting a child with autism spectrum disorder is not at all an easy task. So, एक constant exhaustion है जो मैंने खुद देखी है पेरेंट्स की लाइफ में, बच्चे की लाइफ में, and also it involves a combination of understanding, patience and tailored approaches. हम क्यों कहते हैं प्रोफेशनल्स के साथ कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पेरेंट्स से बड़ा केयर गिवर और अंडरस्टैंडिंग पर्सन कोई नहीं होता। वो उनका प्रोडक्ट है तो वो उसको अच्छे से समझते हैं, लेकिन उनके पास एक कस्टमाइज्ड या बच्चे के हिसाब से अप्रोचेस नहीं होती टू मीट देयर यूनिक नीड्स। वो समझ नहीं पाते उस बच्चे की यूनिक नीड्स को, और इधर से उधर से इतने सारे विचार, इतनी सारी सजेशंस, इतने सारे जो स्टिग्मेटिक स्टेटमेंट्स और ओपिनियंस होते हैं, उनको लेके
वो खुद को गिल्टी और शेमफुल, और बच्चे को वो एक बेचारा समझने लगती है। तो फॉर एवरी चाइल्ड द रोल ऑफ ए पेरेंट एंड केयर गिवर, इट गोज फर्दर देन द वर्ड केयर गिवर हियर, है ना। इट मीन्स दे हैव टू बी एडवोकेटर, सपोर्टर, फ्रेंड, कंफर्टर, प्रोटेक्टर एंड मैनी मैनी मोर। सो यहाँ मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी कि ये बच्चे they might hit developmental and societal milestone in a different order than their peers, but they are able to accomplish these small victories on their own time, बशर्ते उन्हें वही सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग और राइट अप्रोचेस मिल जाए राइट टाइम, है ना। तो जो बच्चा, आप सोच के देखिए कि अपनी कम्युनिकेशन और वांट्स और नीड्स को कम्युनिकेट करने के लिए ही उसको असिस्टेंस चाहिए, तो वहाँ रोल ऑफ पेरेंट, केयर गिवर, एजुकेटर, टीचर, फैमिली, सोसाइटी कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है उनकी मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए, है ना। और मैंने ये भी देखा है कि आजकल सोशल मीडिया पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि हम लोग सेल्फ डायग्नोस्ड असेसमेंट्स करते हैं, हम लोग खुद ही सेल्फ अक्लेम्ड डॉक्टर्स बन जाते हैं, हम खुद ही चीजों को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। बट एट द एंड क्या होता है, पेरेंट्स और केयर गिवर्स दे आर मोर ओवरवेल्म्ड विद द न्यू इंफॉर्मेशन, और फिर इतने सारे सिम्टम्स वो इकट्ठे पढ़ लेते हैं कि वो एक्सेप्टेंस की बजाय डिनायल में जाने लग जाते हैं, है ना। और फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ वो सोचना से घबराने लगती हैं। Families must take their time to understand autism before decisions are made. So awareness and education is very important. And then it is important and essential that families embark on their new journey and they don't feel alone. Because इतने सारे support groups हैं, इतना सारा support system है, इतनी सारी families हैं हमारे around. दिक्कत सिर्फ यही है कि हम सब स्टिग्मेटिक हैं और छुपाने की कोशिश करते हैं, हम शेयर नहीं करते। अगर हम खुल के शेयर करना शुरू करें तो हमें चारों तरफ से ही सपोर्ट मिल सकती है, और इस तरह से हम अपने आसपास के सपोर्ट सिस्टम को ट्रीटमेंट ऑप्शंस में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसकी से हमारी ये जर्नी बहुत ज्यादा इजी और थोड़ी सी लेस बर्डन हो जाती है। तो जैसे आपने पूछा कि डायग्नोसिस होने के बाद पेरेंट्स का क्या रोल रहता है, एक बार अगर पेरेंट अपने बच्चे को समझ लेते हैं, they can learn what behaviors and responses happen during specific situations. बच्चे के ट्रिगर्स क्या हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है कि बच्चे की नीड्स को समझना और फिर दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए ब्रिज, जो रोल पेरेंट को करना पड़ता है ना। सो जो एक गुड सपोर्ट प्रोवाइडर है, गुड साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है या एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर है, स्पेशल एजुकेटर है, वो पेरेंट्स को एंगेज करता है, टीच करता है टू रिस्पॉन्ड एंड रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर्स इन देयर चाइल्ड। ठीक है। सो मैं तो एक बात बार बार बोलती हूँ कि पेरेंट्स हों, केयर गिवर्स हों, दे मस्ट बी द वॉइस एंड एडवोकेट फॉर देयर चिल्ड्रन, तभी इन बच्चों को हम बल दे सकेंगे, है ना। मैं जब भी मेरे पास इस तरह के बच्चे को लेके पेरेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले हम गोल्स डिफाइन करते हैं कि वो फैमिली गोल्स क्या अचीव करना चाहती है, किस तरह के स्ट्रगल बच्चे के घर पे महसूस हो रहे हैं, और बच्चे की बिहेवियर थेरेपी, क्योंकि सिर्फ इंस्टीट्यूट में, ट्रेनिंग सेंटर में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर में ही खत्म नहीं हो जाती, बच्चे की वो सारी थेरेप्यूटिक टेक्निक्स जो हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स, वो घर पे भी चलनी चाहिए। इसीलिए स्कूल का, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का और घर का, इन तीनों का एक ट्रायंगल का बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चे जो ऑटिस्टिक हैं या जो भी स्पेशल नीड्स वाले हैं, उनके पेरेंट्स और केयर गिवर्स की एक कमेटी बनानी चाहिए। वो सब एक साथ हों, अपनी उलझनों को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करें, वो आपस में ही इतना ज्यादा एक दूसरे को सिग्निफिकेंट सपोर्ट दे सकते हैं कि सोसाइटल स्टिग्मा से डरने की उन्हें जरूरत ही ना पड़े, है ना। पॉजिटिव रह के और घर को एक सेफ और कामिंग प्लेस बना के हम लोग जो ये जर्नी बहुत प्रॉपर तरीके से शुरू कर सकते हैं। और हम यहाँ माइंड मेंटर्स में यही काम करते हैं, टू एजुकेट एंड ट्रेन पेरेंट्स थ्रू 7 आइडियाज। एक प्रोग्राम है हमारा, 7 प्रिंसिपल ऑफ एडवोकेसी। और इन दीज 7 प्रिंसिपल्स आई ऑलवेज एनकरेज पेरेंट्स टू बी ए लीडर,
to learn, to think critically, to be proactive, to be prepared, and build a team and be a voice. And I have seen personally, नेहा, कि इस तरह के एट्रीब्यूट्स अप्रोच के साथ ये जो एक इतना अलग थलग फील करने वाली जो एक बर्डन होता है ना, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है ना? यस, सो मैं तो यही कहूंगी कि एक एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट विद राइट गाइडेंस, उसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन बच्चे के साथ, क्योंकि इन बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट इडियम सरकाजम समझ नहीं आता, तो एक बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। उनकी सेंसरी जो डिफिकल्टीज हैं, कंसिडरेशंस हैं, उनके बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें नॉइज कैंसिल करना है उनकी लाइफ से, ठीक है, एनवायरनमेंट से। उनके सोशल स्किल्स को एनकरेज करना है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है जो उनके स्पेशल इंटरेस्ट के साथ मैच करें, ना कि उनके ऊपर हमें कुछ अपनी चॉइसेस इम्पोज करनी है। कभी भी उनके नेगेटिव बिहेवियर्स को पनिश नहीं करना, हमें उनके पॉजिटिव बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करना है। दैट इज ए वेरी पावरफुल टूल इन शेपिंग देयर बिहेवियर्स। जो हम हर तरह की स्पेशल नीड के बच्चे को बारे में बात करते हैं, चाहे वो ADHD ही क्यों ना हो, और अगर आपको लगे कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप ओवरवेल्म हो रहे हो, सीक प्रोफेशनल सपोर्ट। देयर आर सो मेनी गुड प्रोफेशनल्स अराउंड यू हु कैन help you in therapies, in education, and develop and implement an individualized treatment plan according to your child need. और इस पूरी जिद्दोजहद में, क्योंकि पेरेंट्स और केयर गिवर की ड्रेनेज बहुत होती है, सो आई ऑलवेज गिव मच अटेंशन टू देयर सेल्फ केयर, है ना, ताकि उनकी एनर्जी, उनका पॉजिटिविटी, उनका स्टेमिना वो बना रहे, ताकि वो एक बोल है, वो पॉट है जहां से उन्होंने सर्व करना है। तो अगर वो ड्रेन रहेंगे, वो नेगेटिव होंगे, वो एग्जॉस्टेड होंगे, तो उसका सारा इम्पैक्ट वाइब्स एनर्जीज बच्चे को भी मिलेगी। वेरी ट्रू मैम, बहुत बहुत अच्छे से आपने इस बात को एक्सप्लेन किया कि यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। तो बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को अपनी सेल्फ केयर के भी ऊपर ध्यान देना चाहिए, सो दैट दे आर इक्विप्ड एंड इतना सस्टेनेबली वो बच्चों को सपोर्ट कर सके, बिकॉज डेफिनेटली ज्यादा सपोर्ट चाहिए इन बच्चों को, एंड दे शुड बी देयर वॉइस एंड एडवोकेट फॉर देयर नीड्स। कम्युनिटी होना चाहिए, एंड उससे भी ज्यादा जरूरी जो आपने बात कही कि सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस, कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करके एंड देन उसके वो प्लान करना अराउंड इट कि किस तरीके की प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हैं, कैसे उनका आप शेड्यूल बना सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को जान सकते हैं, एंड हाउ नॉट टू इम्पोज योर व्यूज, योर माइंडसेट ऑन द चिल्ड्रन। सो दैट्स वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड मैम। आई एम श्योर बहुत से पेरेंट्स को बहुत क्लैरिटी आई होगी इसको सुन करके कि व्हाट कैन दे डू अबाउट इट नाउ व्हेन यू हैव अ सिचुएशन, क्या करो उसके बारे में आप। सो वंडरफुली एक्सप्लेन। So, ma'am, my next question to you is कि are there any co-occurring situations along with autism, कि इसकी वजह से, इस autism spectrum की वजह से क्या और कोई ऐसी medical condition या behavioral condition हम देख सकते हैं या prevalent होती है बच्चों में? Yes, there are several co-occurring physical, behavioral, and psychiatric conditions, Neha, that often accompany ASD. तो इनको हम एक्चुअली ऑटिज्म क्लिनिकल कंपेनियंस कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा अंग संग सहाय होते हैं, है ना, या फिर हम इनको फ्रीक्वेंट कॉमॉर्बिडिटीज विद ASD बोलते हैं। दीज कंडीशंस कैन वेरी इन सिवियरिटी, हर बच्चे के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, दे कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड डेली लाइफ एक्चुअली। सो इन अगर हम कंडीशंस की बात करें, बिकॉज देर आर वेराइटी ऑफ किड्स, देर आर वेराइटी ऑफ सिम्टम्स, देर आर वेराइटी ऑफ कंडीशंस, तो उसमें से कुछ मेजर अगर हम फोकस करें, तो उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा पिक्यूलियर तरीके से बच्चों में दिखती है, कि इनका लर्निंग जो है एक पेस है वो अपने पीयर ग्रुप से थोड़ा सा स्लो चलती है, जिसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैटेगरीज में डालते हैं। इसकी वजह उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज का थोड़ा सा स्लो होना रहता है, उनकी अडेप्टिव फंक्शनिंग जो है वो थोड़ी सी हैम्पर्ड रहती है ना। इसके अलावा एक जो बहुत कॉमन फैक्टर हम देखते हैं वो है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर इम्पल्सिविटी डिसऑर्डर। इन बच्चों में बहुत ज्यादा हाई रिस्क देखा गया है ADHD का, जिसकी वजह से इनकी अटेंशन में, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी में एक जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहती है। Anxiety is part of these kids because they feel themselves not being able to fit in the environment.
they are not able to keep up pace with that developmental order जो हम लोगों ने एक डिफाइन किया हुआ है नॉर्मेलिटी के हिसाब से। तो आसपास के माहौल की एंजाइटी इन बच्चों में हमें दिखने को मिलती है और धीरे धीरे वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है। और अगर पेरेंट्स केयर गिवर्स टाइमली एजुकेटेड ना हो, अवेयर ना हो और उसको अच्छे से हैंडल ना कर पाए, सो बहुत सारे फोबियाज का ये बच्चे लेटली शिकार हो जाते हैं। और आप समझ सकते हो, if the environment is not supportive, if the scenarios are negative and toxic around them, bully है, judgment है, blaming है, तो फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स तो हम खुद ही गिफ्ट कर देते हैं इन बच्चों को, जिसे हम डिस्थीमिया कहते हैं। डिस्थीमिया इज ए कंसिस्टेंट डिप्रेसिव एपिसोड कि लगातार वो एक लो फेज ऑफ लाइफ में जी रहे, है ना। तो अगर उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी थोड़ी हैम्पर्ड ज्यादा हैं, ऊपर से एनवायरनमेंट भी सपोर्टिव नहीं है एंड नोबडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम, तो फिर डिप्रेसिव एपिसोड का खतरा बहुत ज्यादा बन जाता है। और धीरे धीरे डेवलपमेंटल स्टेजेस में अगर नेगेटिव फैक्टर ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, देन सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज भी आने लगते हैं। सेंसरी डिफिकल्टीज हमने पहले भी डिस्कस की, ईएसडी की अपने आप बाय डिफॉल्ट भी रहती हैं, लेकिन इनके सेंसरी स्टिमुलाई इनको बहुत ज्यादा तंग करने लगते हैं अगर एंजाइटी अंदर ज्यादा अकर कर रही है, एंड इट लीड्स टू स्लीप डिसऑर्डर्स। एक के साथ दूसरे फैक्टर्स इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं, इसीलिए एक प्रॉपर एजुकेशन, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक अप्रोच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग कंडीशंस होती हैं ये इनबिल्ट होने से ज्यादा एनवायरमेंटल ज्यादा होती है ना। तो इंसोम्निया, स्लीप एपनिया, इरेगुलर स्लीप वेक पैटर्न्स, ये इन बच्चों में इतने फ्रीक्वेंट हो जाते हैं कि जो पेरेंट की भी लाइफ को हेल्प कर देते हैं। बॉडी की बात करते हैं अगर हम, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज बहुत फ्रीक्वेंटली इन बच्चों में पाए जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस्ट्रोस्फिगल रिफ्लक्स डिसीज जिसको हम बोलते हैं, इसकी वजह से इनके ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत कॉमनली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। मोटर कोऑर्डिनेशन इश्यूज की हमने पहले बात की है, क्योंकि डेवलपमेंटल जो कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होता है या इसको डिस्प्रैक्सिया भी बोलते हैं, तो फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल वो नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के साथ मैच नहीं करती। ब्रेन की बात करें तो एपिलेप्सी, बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे रहते हैं एएसडी वाले बच्चे कि उनके अंदर एपिलेप्सी भी एक जनरल पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली ज्यादा हो। प्लस जब हम चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो टिक्स हैं, टॉरेट सिंड्रोम है, ये बहुत ज्यादा हमें बच्चों में दिखाई देता है, जिसमें वोकल और मोटर टिक्स पिक्यूलियर हैं, है ना। और टॉरेट सिंड्रोम की बात करते हैं तो उसमें हेड शेकिंग हो गया, हेड बैंगिंग हो गया, तो इस तरह की चीजें हमें बहुत ज्यादा पिक्यूलियर तरीके से दिखाई देती हैं। ईटिंग डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर को मैं मेंशन करना चाहूंगी यहाँ, ताकि पेरेंट्स इसको स्पेसिफिकली ऑब्जर्व करें, दैट इज पीका। When a child starts eating non-eating substances, any kind of material, और हर एक बच्चे का उस टेक्सचर और उस मेटल के लिए या उस मटेरियल के लिए, सब्सटेंस के लिए प्रॉपर ऑब्सेशन दिखाई देता है। कुछ बच्चों का प्लास्टिक में, कुछ बच्चों का मेटल में, कुछ का पेपर में, सो दे कांट रेजिस्ट चूइंग और ईटिंग दीज सब्सटेंसेस। तो अगर ऐसा एक बिहेवियर किसी भी बच्चे में दिख रहा है, इट मीन्स दैट इज ऑटिस्टिक चाइल्ड और पीका उसका पिक्यूलियर है। सो अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेरेंट्स और केयर गिवर्स का अवेयर होना फॉर दीज पोटेंशियल को अकरिंग कंडीशंस, और टू वर्क विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू एड्रेस देम थ्रू एप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस एंड सपोर्ट स्ट्रेटजीज, बिकॉज दे आर अवेलेबल, बस पेरेंट्स उसको सीख करें। राइट मैम, मतलब एक इशू से जुड़ी बहुत सारी और भी इश्यूज दिखते हैं हमको, और दे मे हैव अ डोमिनेट इम्पैक्ट ऑल्सो। सो बहुत कुछ आपने जैसे बताया है कि एनवायरनमेंट से भी आता है, इंट्रिंसिक होने की जगह पे लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे हैव बिकम मोर प्रोन एंड वल्नरेबल टू these issues. So sleep disorders, anxiety, social anxiety, I think these are very very common conditions which can accompany a child who is on the spectrum. So ma'am, obviously the life of parents is not going to be easy, handling a child with this disorder.
सो एंड बहुत से ऐसा नॉर्मली देखा गया है कि टैंट्रम्स ऑफ कोर्स हर बच्चा थ्रो करता है, यू नो, every sort of child throws tantrum, but their tantrums and meltdown seems to be little more intensive. So Yes. can you suggest something ki how can parents of children who are in the spectrum, you know, they can handle their tantrums and their meltdowns? Yeah, definitely. You said very rightly, Neha, कि इन बच्चों का जो meltdown है, it is bigger, it is more emotional, it is more lasting and more difficult to manage than a typical temper tantrum जो हम बच्चों में देखते हैं. So handling these challenging behaviors or meltdowns in autistic children, it requires patience, as I already said. It requires understanding and a proactive approach. हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे में जो ऑटिस्टिक मेल्टडाउन है वो ट्रिगर क्या करता है, कौन सा ऐसा ट्रिगर है जो इस बच्चे को टेंट्रम्स की ओर लेके जाता है. सो मेल्टडाउन ज्यादातर किस तरह से होता है कि अगर एक स्ट्रेसर एक्सीड हो जाता है, एक्सीड्स द पर्सनस एबिलिटी टू सेल्फ रेगुलेट इमोशंस, है ना, ज्यादातर हम यही देखते हैं. और ऑटिस्टिक पर्सन में क्योंकि एक छोटा सा चेंज इन एनवायरनमेंट, एक छोटा सा जो एक रूटीन ओवरलोड है, एक सेंसरी ट्रिगर है, वही इनको एक सीवियर टेंट्रम में पुश कर सकता है. तो इसमें हम कॉमन सेंसरी ट्रिगर्स अगर देखें तो ब्राइट लाइट्स, ब्राइट सन इन देयर आईज, वो भी इन्हें बहुत ज्यादा ट्रिगर कर सकता है. क्राउडेड प्लेसेस, जितने भी शोर वाली जगहें हैं, लाउड म्यूजिक, लाउड वॉइसेस, अनप्रिडिक्टेबल फेसेस, अनप्रिडिक्टेबल साउंड्स, वो इन्हें बहुत ज्यादा ट्रिगर करती हैं. फीलिंग टू हॉट एंड फीलिंग टू कोल्ड, सो दिस ह्यूज या क्विक रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज, ये भी इन लोगों को बहुत ट्रबल करता है. स्ट्रॉन्ग स्मेल्स, जैसे हमने पहले बात की, क्योंकि इनकी सेंसरी स्टिमुलेशन बहुत हाइपर सेंसिटिव हैं, तो स्ट्रॉन्ग स्मेल्स इन्हें बहुत बॉदर करती हैं, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए. मैंने जो सबसे ज्यादा इग्नोरेंस और अवॉइड देखी है, लैक ऑफ अवेयरनेस पेरेंट्स में, दैट इज रिगार्डिंग देयर क्लोथिंग. बिकॉज बच्चे को अनकंफर्टेबल क्लोथिंग, सॉक्स, शूज, ये नहीं जमते हैं. जनरली भी हमने देखा है बच्चे बहुत ट्रिगर होते हैं उससे, बट ऑटिस्टिक बच्चा तो उसे झेल ही नहीं पाता. सो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना ही टेंट्रम्स को काफी हद तक मैनेज करने में हेल्प कर सकता है. Right, ma'am. Thank you so much. Tantrums तो definitely normal parents के लिए भी it's a difficult situation to handle, and I've seen so many parents lose their calm and control. तो आपने बोला patience, तो I think patience तो has to be a virtue for every Yes. parent, right? So जब हम tantrums की बात कर रहे हैं मैम, so we've observed कि ज्यादातर tantrums, you know, चाहे normal बच्चा हो या autistic बच्चा हो, कई बार tantrums ना grocery stores में बड़े frequent होते हैं. I don't know if it is that's just by chance or is it really something which triggers that tantrum or meltdown. So if you can just throw some light, is it just my assumption कि ज्यादा होता है grocery stores में ये situation, or is it really something to do with the environment there? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने. बहुत सारी मदर्स या पेरेंट्स तो इससे रिलेट डेफिनेटली कर पा रहे होंगे, क्योंकि मॉल्स में हम जाते हैं, कहीं पीवीआर्स में जाते हैं, कहीं भी क्राउडेड प्लेसेस जहाँ होते हैं, वहां हम देखते हैं कि बच्चा क्योंकि ना बहुत ज्यादा निग्लेक्ट फील करता है उस वक्त, कि हम लोग तो अपनी अपनी शॉपिंग, अपनी अपनी जो प्रायोरिटीज और हमारे जो एक मिशन होता है उस वक्त, क्या बहुत सारा सामान खरीदना है या फिर मूवी देखनी है या अपने फ्रेंड्स को मिल रहे हैं क्लब में, वहां ऐसी जगहों पे बच्चे के लिए एक सेंसरी नाइटमेयर हो जाता है एक्चुअली, है ना, और स्पेशली फॉर ऑटिस्टिक पीपल. ये जगहों में सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं फॉर ऑटिस्टिक मेल्टडाउन, आई शुड से. फ्लोरेसेंट लाइटिंग, नॉइजी क्राउड्स, फूड स्मेल्स, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, किस वक्त कहाँ क्राउड ज्यादा हो जाएगा, कौन अचानक से टकरा जाएगा, है ना. So we need to keep in mind, however, that a meltdown is not the same as a tantrum. A tantrum occurs when a child is trying to get something they want or need, like a toy or a candy in the checkout store. But a meltdown occurs when a child is overwhelmed by their surroundings. So उस वक्त क्या होता है, पेरेंट बच्चे को कंट्रोल और मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें उस एनवायरनमेंट या ट्रिगर को कंट्रोल और मैनेज करना होता है. यही हम फेल हो जाते हैं. यस.
सही कहा आपने मैम, क्योंकि हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं और ढूंढते हैं, जबकि प्रॉब्लम का इशू, द रूट कॉज लाइज समवेयर एल्स. So, yes, you're right. And there's a difference between tantrum and a meltdown, and one should understand that difference, ki what is really a tantrum and what is an actual meltdown that the child is facing. So definitely. So ma'am, you've already touched upon it in our previous conversation also, but I would want you to just give a recap of कि what are the ways that parents can prevent these meltdowns, especially in public, because वहाँ parents भी बहुत conscious हो जाते हैं. They also become very conscious of the fact that there are people around. तो क्या कर सकते हैं जो preventive measure की तरह to avoid these meltdowns in public? सी नेहा, यस, एम्बैरेसमेंट की बात करते हैं तो वो गिल्ट, एम्बैरेसमेंट, सोशल शेम, ये तो पेरेंट्स में बाय डिफॉल्ट अपीयर होनी शुरू हो जाती है, स्पेशली द चाइल्ड इज इफ लिटिल बिट डिफरेंट, है ना, लिटिल बिट एक्टिव, लिटिल बिट शरारती और नॉटी जिसको हम बोलते हैं, या बिगड़ा हुआ. तो जब ऑटिस्टिक मेल्टडाउन की बात आती है तो डेफिनेटली वी कांट प्रिवेंट, एक्चुअली नॉट ऑल द टाइम, आई विल से समटाइम्स वी कैन प्रिवेंट. इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज एंड एंटिसिपेट आर चाइल्ड्स ट्रिगर्स. मैंने पहले भी कहा कि हमें ट्रिगर्स पहले जरूर अंडरस्टैंड करने चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के ट्रिगर्स अलग होते हैं. और अगर बच्चा अर्ली साइंस ऑफ मेल्टडाउन दिखा रहा है तो हमें पहले ट्रिगर्स रिमूव करने हैं, और या फिर उन बच्चे को एनवायरनमेंट से रिमूव करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द ग्रोसरी स्टोर इज ट्रिगरिंग, अवॉइड गोइंग एट बिजी टाइम्स. अब ऐसा तो नहीं है कि हम जाएं ना और बच्चे को ना लेके जाएं, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चे को कहाँ छोड़ के जाएं, एंड स्पेशली एक स्पेशल बच्चा है तो उसको कोई टेक केयर करना भी नहीं चाहता. गो ऑन द लाइटर आवर्स एंड ब्रिंग ए कंफर्टिंग आइटम, एक ब्लैंकेट, एक स्टफ्ड एनिमल, एक बच्चे का फेवरेट टॉय, है ना, उसको आप अपने साथ लेके जाएं, ताकि आपको बच्चे को सूद करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम साथ हो. एक क्लोथ, एक फेस मास्क, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेवेंडर, जिसको हम एसेंशियल ऑयल कह सकते हैं, अनदर प्लेजेंट सेंट बच्चे के साथ ऑलरेडी हो, जो उसे बाकी आसपास की स्ट्रॉन्ग स्मेल से ट्रिगर करने में जो है वो बचा सके, उसे वो सेव कर सके उससे, है ना. तो छोटे छोटे चीजें हैं, और हम ज्यादातर ध्यान किस पे देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. नहीं, all the time we are talking about what we need to do. Here I want to highlight, darling, के what we are not supposed to do at that time. अगर ऑटिस्टिक मेल्टडाउन है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीजों को अवॉइड करना चाहिए. तो सबसे पहले करना क्या है कि सिर्फ काम रहना है. ट्राई टू स्टे काम एंड कंपोज्ड. मैं पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को, इवन जो लोग ऐसी सिचुएशंस को विटनेस करते हैं एज ए स्ट्रेंजर और एज ए भीड़, मैं उन्हें भी बोलूंगी कि ट्राई टू स्पीक सॉफ्टली, यूज स्मूथिंग जेस्चर्स टू हेल्प de-escalate द सिचुएशन, ना कि उसको आप और एस्केलेट करने में रोल प्ले कर रहे हो, बच्चे को और ज्यादा हाइपर करके. डोंट शेम द चाइल्ड. ज्यादातर मैंने सुना है पेरेंट्स को स्क्रीमिंग लाइक एक्ट योर एज, अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव किया करो, तुम इतने बड़े हो गए हो. नो, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन ए चाइल्ड हु डजंट कनेक्ट विद एज एप्रोप्रिएट बिहेवियर. ये कह के हम खुद को ही मतलब गलत साबित कर रहे हैं कि हमें इतनी समझ नहीं है, है ना. सो अवॉइड रीजनिंग और आर्ग्यूइंग. अगर बच्चा उतनी एज में पहुंच गया है कि आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, ऑटिस्टिक चाइल्ड विद लो सपोर्ट नीड्स will find it impossible to have a rational conversation in the middle of a meltdown. आज नॉर्मल बच्चा भी नहीं कर पाता है. हम इतनी इम्पल्सिविटी और सेंसिटिविटी बच्चों में देख रहे हैं, इतना एग्रेशन देख रहे हैं, तो हम एक स्पेशल बच्चे से तो ये एक्सपेक्ट ना ही करें. We must avoid threatening the child in that space, please. That will either be ignored, make you angrier, or escalate the situation. So इसीलिए हमें अपने बच्चे के साथ कामनेस ही एक्सपेरिमेंट करनी है. एंड बाय एनी मीन्स, इन एनी सिचुएशन, डोंट लीव योर चाइल्ड अलोन. Yes, you can give your child space, but don't leave them alone, please. Because I have observed such kids, how autistic children can have a tough time understanding danger in the best of situations. Keep close enough so they know that you are there. Because in बच्चों में जरा भी एक rational, logical thinking नहीं होती. They can't access danger and threats around them. So they can be into some other threatening situation if they are ill. Or please don't
let someone else handle the situation if that person is not so close to the child. Even with the best of intentions, the majority of adults have no clue how to manage an upset autistic child, especially. So step in and take charge, parents. Don't try to overrule, avoid, or ignore your responsibilities. बिल्कुल ठीक और कहा मैम. अगर मेल्टडाउन हो ही गया Yes. है ना, तो क्या नहीं करना ये हमने डिस्कस किया. मेल्टडाउन हो गया, ओवर हो गया, आपने भी झेल लिया, बच्चे ने भी झेल लिया, अब क्या करें? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद की जर्नी को हम इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है कि अब तो एपिसोड हो चुका. नहीं. Immediately after a meltdown, your child may feel exhausted. More than you, things you can do to help a child recover from a meltdown, it includes so many छोटे little steps. Give your child time and space to regroup. उसे immediately normal होने की expectations मत करिए. उसे एक calming और familiar activity करने दीजिए जिसको वो enjoy करता है, जिसके साथ उसको comfort feel होता है. जैसे किसी बच्चे को बुक रीड करना अच्छा लग सकता है, किस बच्चे को कोई सेंसरी ऑब्जेक्ट को टच करना अच्छा लगता है, किसी का कोई फेवरेट टॉय, सॉफ्ट टॉय हग करके सोना ही उसके लिए उस वक्त एक कामिंग टेक्निक हो सकती है ना. उस बच्चे को थोड़ा सा टाइम पेट के साथ स्पेंड करने दीजिए. यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगी नेहा, स्पेशली इन बच्चों के लिए पेट थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी. They can connect with pets very well, and pets can calm them more than their parents or caregivers. Wow, that's a beautiful way. Yeah. And if language and developmental ability allows, then set a time later when you are both calm to talk about what happened. अगर बच्चा माइल्डर ऑटिस्टिक है, माइल्ड टू मॉडरेट में आ रहा है और आपकी बात को रैशनली थोड़ी देर समझ जाता है काम होने के बाद, फिर उसके साथ डिस्कस जरूर करिए टू एजुकेट दैट चाइल्ड, टू लेट देम बी अवेयर कि इस बार जो हुआ वो अगली बार थोड़ा और कम या अवॉइड किया जा सकता है ना. और ये भी हमें डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है कि वेयर न्यू ट्रिगर्स और ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिगर्स अकर. इस बार कुछ नया क्या था जिसने बच्चे को अपसेट किया. तो पेरेंट्स का हर वक्त अलर्ट, अवेयर, एजुकेट होना जरूरी है थ्रू द एनवायरनमेंट, थ्रू द सराउंडिंग्स, है ना. बिकॉज एवरी चाइल्ड विद ऑटिज्म इज यूनिक, so it may take time to find the strategies that work best for our child. So, but patience, consistency, and a supportive approach, these are key to managing challenging behaviors and meltdowns in all ages, in all scales of this spectrum. Yes. True. That's very relevant points that you highlighted, ma'am. कि prevent करने के लिए क्या करा जा सकता है, and more than prevention उसके बाद में, because as you said कि इसको prevent करना may be a difficult task, it may be a challenging task to completely avoid this situation. But of course अगर meltdown हो गया है उसके बाद में क्या करें, I think this is few points जो शायद हम नहीं सोचते हैं कि अब तो जो हो गया सो हो गया. So definitely, this will also help the child to recover soon, and the parents also will have a way to handle things in a better fashion, in things which are not that damaging for themselves as well as for the children. Yes. So, and yes, ye pets wala baat is, I think pets generally I've seen children very taking fancy of pets and enjoying the company of pets in general also. But that's quite a point key for autistic children. This may be a way of venting out or maybe finding solace, seeking Yes. solace. So I think parents would find this point very relevant. या और यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है ध्यान देना कि why they are so much comfortable with soft toys looking like some pets like teddy bear हो गया, dog हो गया, whatever, or real pets, because they are not judgmental, they are giving unconditional love and support. तो यही एक हमें उनके लिए क्रिएट करना है अपने दिल में भी. ट्रू, एंड आई थिंक हम सबको भी उतना ही नॉन जजमेंटल होकर के उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है. सो right. So last question for this episode, we'll of course be continuing this conversation because ये बहुत ही important topic है and there is so much to talk about. तो नहीं possible है इस छोटे से वीडियो में इतनी सारी बातों को समा पाना. So definitely we'll have around second episode to this series, to this conversation. We'll continue it. But आज के लिए, ma'am, I would ask the last question of the series is,
कौन से ऐसे मिसकंसेप्शंस या मिथ्स हैं जो बहुत कॉमनली प्रेवलेंट हैं, स्पेशली फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन? पीपल में हैव लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन. आपने बोला ना, इंटरनेट इज फुल ऑफ डेटा, आप डालो एंड देन देयर इज ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन. तो एंड कुछ राइट है, कुछ रॉन्ग. आई नॉट से रॉन्ग, बट मे दे मे नॉट बी दैट ट्रू इन करंट टाइम्स. सो व्हाट आर दोस कॉमन मिथ्स जो पेरेंट्स को ध्यान रखने चाहिए एंड अवॉइड करते हुए चलना चाहिए? Yes, very perfect question, dear. As the most of us, as a global community, are still suffering with a few mental blocks, with people with special needs, है ना? So I would like to put light on major 10 misconceptions about autism here. Otherwise तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत common जैसे आपने पूछा और जिसकी वजह से सफरिंग ज्यादा एड ऑन हो जाती है इन लोगों की लाइफ में या इनके पेरेंट्स की लाइफ में, फैमिलीज की लाइफ में, है ना? सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं नेहा जो हमें दिखाई नहीं देती. कुछ न्यूरोटिपिकल पर्सपेक्टिव हम लोग देख लेते हैं अपने लव्ड वंस का, अपने आसपास के सोसाइटल नॉर्म्स का, और उसके हिसाब से हम अपने खुद को और अपने बच्चे को जज करने लगते हैं. ऑटिज्म इज रेयरली पोर्ट्रेड एज एनीथिंग मोर देन ए सम ऑफ डिफिकल्टीज with social interaction, misinterpretation of non-verbal visible cues, and of course meltdowns. हमें लगता है बस autism यही है. No, there are many less immediately visible aspects of the condition, such as differences in sensory processing. जैसे हम कहते हैं कि over और under sensitive to sound textures. मैंने इतना lack of awareness देखा है families में, even in professionals who are serving these communities. उन लोगों को भी ये idea नहीं है कि इन चीजों के बारे में भी educate करना है. तो लाइट की ब्राइटनेस, साउंड की तेजी, सनलाइट, एसी का कोल्ड टेम्परेचर, ये भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है उनके मेल्टडाउन में, जैसे हमने पहले बात की. सो इफ एक्नॉलेज्ड वुड एक्सप्लेन ए लॉट ऑफ दैट सो कॉल्ड स्ट्रेंज बिहेवियर, कि यार हम भी तो बैठे हैं एसी में, तुम्हें क्या हो रहा है, हम भी तो ये कर रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ना? तुम तो छोटी छोटी बात पे ही तुम तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो, इसकी तो बहुत ज्यादा नखरे हैं. लाइक इस तरह की जो चीजें हैं, सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है. यस, सो ओवर रिएक्टिव, ओवर सेंसिटिव, हम ये बातें कह के इतनी लेबलिंग करते हैं और इतना गिल्ट फील करा देते हैं उस बच्चे को जो हेल्पलेस है. उसे खुद नहीं पता उसके साथ ये क्यों हो रहा है ना? बिकॉज दे हैव इमोशंस, even if they are not always expressed in the way we expect, but they have emotions. And differences in non-verbal expression sometimes lead neurotypical people to believe that autistics don't experience emotional responses at all. हमें लगता है वो dumb हैं, वो emotionally numb हैं. No, but they are there, even if you can't see them. In fact, more recent research जो है वो ये propose करती हैं कि these traits may be due to excess of empathy rather than lack of it. इन बच्चों में empathy बहुत ज्यादा होती है और इसलिए उन्हें reciprocation में भी ज्यादा चाहिए होती है. सो मैं पर्टिकुलरली वो फीचर्स जो साइंटिफिक टेक्निकल हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहूंगी. मैं एक आम लोगों की माइंडसेट और मेंटेलिटी के हिसाब से आम चीजें बताना चाहती हूँ कि इट इज लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन जस्ट हाई फंक्शनिंग एंड लो फंक्शनिंग. हम ज्यादातर समझते हैं कि नॉर्मल बच्चा ये कर सकता है, ऑटिस्टिक ये नहीं कर सकता, वो इसमें नीचे है. नो, एज ए सोसाइटी वी आर फाइनली गेटिंग बियॉन्ड द आइडिया दैट वन पर्सन कैन रिप्रेजेंट all autistic people. This is often replaced by the notion of two polar extreme of autism, actually, high functioning and low functioning. But this limited understanding often results in some people having their difficulties ignored, while others have their capacities and capabilities ignored. मतलब हम एक सेट ट्रेट्स बना लिए कि इनमें ये होंगे और ये नहीं होंगे. उसमें हो सकते हैं ना, उनकी उस पोटेंशियल और स्ट्रेंथ को हम नर्चर ही नहीं कर रहे, ये समझ के कि ऑटिस्टिक है तो इसके ऊपर ये एफर्ट करने का फायदा ही नहीं. या फिर इसमें ये होना ही चाहिए डिफिकल्टी, तो इस पे ऊपर काम करने का क्या फायदा. सो वो चीजें जो हैं, ये स्पेक्ट्रम बहुत डाइवर्स है. सम नीड मोर सपोर्ट देन अदर्स. वी ऑल हैव आवर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, बीइंग नॉर्मल पीपल आल्सो, एंड वी टू पीपल बीइंग नॉर्मल आर आल्सो नॉट द सेम, है ना? हमारी सबकी पोटेंशियल कैपेसिटी अलग अलग है. पर्सनली आई हैव trained and nurtured two autistic twins brothers, और वो दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट थे अपनी अपनी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज में. One was very shy and introvert, otherwise not able to talk properly. उसको जो हम टॉरेट सिंड्रोम और हिकअप्स बहुत ज्यादा थे, फिर भी उसमें एक बहुत ज्यादा
हाई एनर्जी और पॉजिटिविटी थी कि मुझे बोलना है, एंड वी कुड ट्रेन दैट चाइल्ड टू बी ए वेरी गुड स्टेज स्पीकर. एंड देन ही ओपनड हिज ओन शोरूम, और उसने क्लाइंट के साथ इतना एग्रेसिवली बात करनी, सेलिंग उसके जो टैक्टिक्स थे वो इतने स्ट्रांग थे. अदर वन वाज शाय एंड इंट्रोवर्ट, तो उसको हमने कंप्यूटर सिखाया, कंप्यूटर टेक्निक में सिखा के नाउ ही इज लुकिंग आफ्टर ऑल द एंट्री एंड बिलिंग पोर्शन ऑन द शोरूम, और दूसरा जो है वो सेल कर रहा है. सो बोथ आर रनिंग देयर ओन बिजनेस, जबकि उन्हें स्कूल लेवल में 8 तक भी स्कूल वालों ने एंटरटेन नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया सब स्कूल्स ने कि ये कुछ नहीं कर सकते. पेरेंट्स की एजुकेशन और बहुत ज्यादा चीजें काम आती हैं जब हम ये देखते हैं. और being able to handle something sometimes doesn't mean they can do it all the time. अब जैसे अगर मैंने आपको बताया कि एक बच्चे में टेक्निकल स्किल्स की अपॉर्चुनिटी थी, हमने उसमें ट्रेन कर दिया, एक में स्पीकिंग स्किल्स की थी, हमने उसमें ट्रेन कर दिया, बट इट डजंट मीन कि उनके ऑफ डेज नहीं आएंगे या वो उस चीज में फेल नहीं होंगे, है ना. चेंज इन हेल्थ, चेंज इन मूड, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, चेंज इन ट्रिगर्स, चेंज इन एनवायरनमेंट, दे कैन लीड टू चेंज इन एबिलिटी टू कोप. एंड ऑटिस्टिक पीपल आर नो डिफरेंट देन अस. हम लोगों के इतने मूड स्विंग्स हो जाते हैं, है ना. So it doesn't mean the existence of good days doesn't mean they are faking the bad days. और उनकी एनर्जी को हम कई बार बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट करके रॉन्ग चैनल में भेज देते हैं. वो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है. एक मिथ बहुत और ज्यादा है कि ऑटिज्म को हमेशा डिसेबिलिटी माना गया है, जैसे मैंने पहले बोला है, और उनको एज सच एक्सेप्ट करके, जिसको बोलते हैं ना कि अब गुजारा ही करना है, मैनेज ही करना है, क्या करें. ये जो सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी है, ये बहुत ज्यादा बैरियर्स क्रिएट कर देता है इन बच्चों को एक हेल्दी, नॉर्मल, एम्पावर्ड और सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए, है ना. क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक फ्रेमवर्क है, आइडियल बॉडी, आइडियल ब्रेन, और हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर ट्रेट्स होंगे, ये स्केल पे आप खरे उतरेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. No. हमारे स्पेशल स्कूल में यहाँ हमारा एक जो स्लोगन है वो ये है, डोंट शो पिटी, गिव मी अपॉर्चुनिटी, है ना. सो जब Lovely. हम उन्हें, हाँ, पिटी देने से हम उनकी कैपेबिलिटी, कैलिबर और जो पॉसिबिलिटीज हैं भी, उन्हें भी हम बिल्कुल श्रग ऑफ कर देते हैं. लेकिन हम जब अपॉर्चुनिटी देंगे, एक फेल होगी, एक किक कर जाएगी, एक चीज हिट होगी, एक मिस फिट होगी, इट्स ओके. ये हम अपने बाकी बच्चों के साथ भी तो कर रहे हैं, है ना. True. सो हमें पता है ऑटिज्म इज ए लाइफ लॉन्ग कंडीशन. नो, बट इट्स नॉट फॉर किड्स. मीडिया की जो रिप्रेजेंटेशन है ना ऑटिज्म की, वो अब इम्प्रूव कर रही है, लेकिन फोकस अभी भी यंग बच्चों पे ही है, कि सिर्फ बच्चों में ही ऑटिज्म पाया जाता है. ये एक बहुत बड़ा मिथ है. This means that many adults on the spectrum go completely undiagnosed and unsupported. True. And the problems faced by autistic adults are widely scary. है ना. और इसमें एक और मिथ जो ज्यादा ऐड होता है कि it's for boys only. No, it's not just for boys either. At present, men and boys greatly outnumber women and girls diagnosed with autism. And until fairly recently, it was accepted that the condition is simply more common in men. लेकिन ये गैप जो है ये क्लोज हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज हम प्रोफेशनल ये रियलाइज कर रहे हैं ऑन रिसर्च बेसिस, ऑन आवर न्यू स्टडीज, दैट मैनी ऑटिस्टिक वुमेन आर गोइंग अनडायग्नोज्ड और मिसडायग्नोज्ड, क्योंकि हमारे ये मिथ है कि उनमें ऑटिज्म थोड़ी हो सकता है ना. True. That's very prevalent. Yes, one explanation is that girls are socialized into masking their autistic traits. हम लड़कियों को शुरू से ट्रेन करते हैं, ये तेरी कमी आगे तुझे दिक्कत देगी, इसको या तो छुपा ले या फिर ठीक कर ले. Conditioning. कंडीशनिंग. तो हम लोग सिर्फ ऑटिज्म का जो ट्रीटमेंट है, क्योर है, ट्रेनिंग है, ये हमें फोकस्ड ही ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन मेल्स पे की हुई है, लीडिंग टू बायस इन द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अबाउट फीमेल्स. True. So as an educator, as a mental health practitioner, as a coach and trainer also, global level पे हम लोग webinars करते हैं, लोगों को educate करते हैं. My more focus is कि I am trying to encourage females कि अगर आपको अपने अंदर कुछ इस तरह के challenges लगते हैं, don't stay muted.
प्लीज ओपन अप, स्पीक अबाउट दैट, ताकि लोगों का ये मिथ ब्रेक हो, है ना? ट्रू ट्रू एंड दैट्स सो गुड मैम कि बिकॉज कई बार हम विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इतना ओवरशैडो हो जाता है, इट्स ऑलवेज ब्रश्ड अंडर द कार्पेट. सो इसीलिए प्रॉब्ली जितना रिसर्च हो ये आता है, दे शोन मोर नंबर ऑफ मेन एंड बॉयज सफरिंग विद इट, बिकॉज बहुत सी केसेस में तो it just goes simply undiagnosed completely. So you're so right कि they should not stay muted. If they have any such challenge, they should always open up about how they need help. यस। और अगर मैं और मेजर मिसकंसेप्शंस की बात करूं, मिथ्स की बात करूं, तो हमें ये भी लगता है, जैसे मैंने पहले बताया, कि पेरेंट्स स्टार्ट बिलीविंग कि अब ठीक ठाक सी लाइफ इनकी मैनेज करनी पड़ेगी, वी कांट डू ग्रेट थिंग्स विद दीज किड्स। नो, ये एक बहुत गंभीर मिथ है कि वेरी फ्यू ऑटिस्टिक पीपल्स आर अचीवर्स। नो, बट आवर इंटरेस्ट डोंट हैव टू बी प्रोडक्टिव टू बी वैल्यूएबल। हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो हमारे को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। ये हमने कॉमन आम लोगों में भी देखा है कि अगर बच्चा एक एवरेज एकेडमिक अचीवर है या बिलो एवरेज है, वो किसी और एरिया में बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है ना? सो इसी तरह से इन बच्चों में भी बहुत सारे डिफरेंट टैलेंट्स, क्रिएटिविटी और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और ये हमारे सामने ग्लोबल लेवल पे अवेलेबल है डाटा कि कितने सारे ग्लोबल लेवल के अचीवर सेलिब्रिटीज हुए हैं जो ऑटिस्टिक रहे हैं, है ना? जैसे अगर हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लें, बहुत जो कॉमन है, मैं सेलिब्रिटीज की बात इसलिए करती हूँ ताकि हर एक कॉमन पर्सन उसके साथ रिलेट कर सके, जबकि मेरा फोकस ज्यादा लोकल लोगों पे रहता है कि मेरे आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, है ना? True. तो इंटरनेशनली एक्लेम्ड सेलिब्रिटीज आर मेनी, पर उसका मैं चाहूंगी कि एक डिटेल लिंक हम अपने लिंक में शेयर कर देंगे, क्योंकि इतने पे बात करना मुश्किल हो जाएगा। बट टू नेम ए फ्यू, मैं चाहूंगी हर फील्ड से मैं एक एक नाम जरूर पिक करूं, ताकि जितने भी पेरेंट्स ऐसे बच्चों को संभाल रहे हैं या उनके लिए फ्यूचर के लिए वरीड हैं, तो उन्हें पता हो कि कोई भी ऐसा एरिया और फील्ड नहीं है जहां ये बच्चे शाइन आउट नहीं कर सकते, है ना? एक मूवी डायरेक्टर रहे हैं टिम बर्टन, एक साइंटिस्ट रहे हैं हेनरी कैवेंडिश, नेचरिस्ट सॉरी जियोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट रहे हैं चार्ल्स डार्विन। बहुत सारी थ्योरीज हमने स्कूल में उनकी पढ़ी हैं, है ना? Yes. एक चेस ग्रैंड मास्टर हैं बॉबी फिशर, हु वाज मॉडरेट टू सीवियर ऑटिस्टिक पर्सन। बिल गेट्स हमारे बीच में हैं, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, हमें पता है की स्टोरी। न्यूटन की थ्योरीज इतनी सारी हमने पढ़ी हैं एज ए मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिस्ट। उनसे उनसे बड़ा फिजिस्ट अभी तक हुआ नहीं है, एंड True. ही वाज ऑटिस्टिक। एक पोकेमोन आपने सीरीज देखी होगी, बच्चों की Very फेवरेट popular. सीरीज है ना, पॉपुलर। तो उसके जो क्रिएटर हैं, ही वाज ऑटिस्टिक, यू नो। Wow. एंटरप्रेन्योर जिनका हम सक्सेस, लीडरशिप, मनी मेकिंग में बुक्स में एग्जांपल देते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज में एग्जांपल देते हैं, एमबीए में उनका रेफरेंस दिया जाता है, एलन मस्क। Oh, yes. Oh, ओके। फेमस आर्टिस्ट जिनकी पेंटिंग सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, विंसी। wow. Leonardo da Vinci. या सो थॉमस एडिसन, उसकी उनकी तो स्टोरी सबको पता है कि कैसे स्कूल ने एक ह्यूमिलेटिंग लेटर उनकी मदर को लिखा था और बोला था कि ये बच्चा आपका कभी कुछ नहीं कर सकता। Yes. लेकिन उस मदर ने उन्हें इतना अच्छे तरीके से एजुकेट किया, एम्पावर किया, सपोर्ट किया, पॉजिटिविटी भरी कि बच्चे यू आर सो यूनिक एंड डिफरेंट कि नो स्कूल इज कैपेबल टू हैंडल यू। तो Yes, really, that's right. माइंडसेट की बात है, इधर से इधर आना, है ना? So being a mental health practitioner, we read so many things created by Carl Jung, जो कि साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट रहे हैं। He was severely autistic, so he could develop so many theories about psychology, human psychology. Yes. So अगर हम इन चीजों को देखें, और अगर मैं अपने आसपास कहूँ, हमारी खुद की फैमिली में एक बच्चा है जो अभी यंग गाय है, वेरी हैंडसम, स्मार्ट, सिवियरली ऑटिस्टिक चाइल्ड सिंस चाइल्डहुड, और पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया, मेहनत की, अपनी जॉब छोड़ के उसके एक स्किल को डेवलप करने में अपनी पूरी एनर्जी लगाई, एंड नाउ ही इज ए इंटरनेशनली एक्लेम्ड गोल्फर विद मेनी 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 नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। आप सर्च कर सकते हैं, रन विजय सिंह सैनी फ्रॉम गुड़गांव। Lovely.
या फ्रॉम दिल्ली एक 19 ईयर ओल्ड गाय है प्रणव बख्शी, जो कि अभी रिसेंटली बहुत हेडलाइंस में थे बाय बिकमिंग इंडिया फर्स्ट मॉडल विद ऑटिज्म। और प्रणव ने रैंप वॉक किया है वेरी वेल नोन फैशन लेबल्स, यू नो। हम्म हमारे पास एक 25 ईयर ओल्ड ऑटिस्टिक वेब डेवलपर हैं प्रेम शंकर, ऑटिस्टिक हैं, जो एएसडी में एक सीवियर मॉडरेट टू सीवियर स्केल पे आए सिंस द एज ऑफ 5, बट ही इज ए वंडरफुल वेबसाइट डिजाइनर। So there are so many skills that can be nurtured only if the parents have that patience, और जो आपने कहा ना वो zeal की बच्चों में एफर्ट डालने की, आई थिंक देन देर इज नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपने कहा ना पिटी नहीं अपॉर्चुनिटी, तो वो इक्वालिटी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी आपने जैसे जो नाम गिनाए अपनी अपनी फील्ड में महारथी हैं सब, सो एंड so many of the names we didn't know that they were actually autistic. So Yeah. because we've only seen the glazy side of them, what media projects them, but if they really have this symptom, and with that if they are able to succeed, and not just a normal success, leading a normal life, but way beyond normal. So I'm sure if we have such examples in front of us, so there is no dearth of opportunities. It is just that extra bit of effort that's required from the parents and the caregivers, which can make all the difference in the lives of these children. Yes. So So I always use one statement, it is not all doom and gloom. बीच के रास्ते भी हैं, कि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता या फिर बहुत कुछ हो सकता है। एक और मिथ भी बहुत रहता है कि अगर बच्चे में कुछ भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है तो पेरेंट्स उसमें फिर बहुत हाई ऑफिशिएंसी, हाई प्रोफिशिएंसी, हाई काइंड ऑफ अकम्पलिशमेंट्स जज करना शुरू कर देते हैं। वो भी हमें नहीं करना है। एवरी पर्सन हैज देयर ओन स्ट्रेंथ्स, यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज। उनको उनके अकॉर्डिंगली, उनकी स्टेमिना कैपेसिटी के हिसाब से नर्चर करना है। जस्ट वी नीड टू गिव देम अपॉर्चुनिटी, दे विल शाइन आउट अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैपेसिटी, है ना। और एट द एंड आई वुड लाइक टू ऐड, बहुत सारे लोगों में मैंने ये भी सुना है जब वो आप हमारे पास बात करने आते हैं कि पहले तो ये बिल्कुल ठीक था लेकिन कुछ वैक्सीनेशन हुई उसके बाद से ये हुआ है। true, सो we've heard that so many times. एग्जैक्टली, as professionals, even we don't know what causes autism, but definitely it is not vaccines. That's quite a myth that a lot of people entertain, ki vaccinations are a cause of autism. So thank you for clarifying that very big myth and misconception about it. So really, it was such a beautiful interaction, Dr. Saini. We got so many brilliant inputs from you. I'm sure a lot of parents जो अभी भी उस stage में हैं, denial की stage में हैं probably, or maybe acceptance hai but they don't know what to do. So I think this video is going to really help them understand ki first, is it really a red flag that they should be concerned with? Should they really reach out to an expert? And if it is really, then how should they go about managing and making the lives of themselves as well as their children much more smoother and well balanced? So we'll continue this conversation, again, where we'll talk about which experts should these parents reach out to, what ages, what kind of therapies, what kind of line of treatments can help children with autism, and not just children, of course, adults as well. Yes. Focus, of course, is on children. So we will continue this discussion, and how society can play a role, of course. So apart from just parents and caregivers, how society at large, people like us can contribute and help the people who need extra help here. Yeah. So thank you so very much, Dr. Saini, for taking out time and sharing such valuable insights with us and the parents who are going to look at this video. And thank you all the lovely viewers for watching this video. We hope we are able to add value. We are able to dispense some knowledge and awareness to make your lives easier. So thank you so very much. So until next time, it's thank my you. privilege, Neha, and thank you so much again choosing me for this wonderful day and topic, because definitely it means a lot. Thank you. Thank you so very much, ma'am. We hope to see you soon again. Thank you so much. Bye-bye. Bye.